So today we are going to check the quality of a wine using the linear regression model or linear regression problem. As we studied before, the regression model, the regression, how we're going to apply the regression on our code. Regression हमने क्यों किया था? क्योंकि हमने कोई चीज़ को predict करना होता है in continuous procedure. जैसे कि आजकल COVID-19 चल रहा है. If you are going to find out the side effect of virus on the COVID-19, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन. क्योंकि हमें इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है, व्हाट डू आई नीड इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट दीज आउटपुट. हमें आउटपुट रिक्वायर्ड होते हैं कि कोरोना के अब साइड इफेक्ट्स क्या होंगे. सो हमारी आउटपुट क्या हुई एक्चुअली, द साइड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन द कम्युनिटी. नाउ हाउ वी गोना गेट द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोरोना ऑन द कम्युनिटी, how we gonna able to find out what features do we need as an input or output. So today we are going to have some different example before we are going to proceed in a huge model training example, model loss and control objective and optimization function. So before we are going into the deep down of the linear regression, I'm just going to quote a different example in front of you, like a quality of a wine. There are a lot of people who are actually in America and South Africa or all around the world. They are actually more curious about the quality of wine, how they put the things like the quality and the wine, because they're more anxious about the wine quality and the history of wine. So they are more into the history and the quality they use for a wine. So there are a lot of things. If you are going to made any image, any thing regarding the quality of a wine, so there are large difference in price and the quality between the years. Although wine is produced in a similar way, wine एक ही तरीके से बनाई जाती है और एक ही कंपनी बनाती है, लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम गुजरता जाता है, the quality of wine increases day by day and the quality of the thing increases day by day. वाइन की क्वालिटी भी इंक्रीज करती है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज करती रहती है. सो इट डिपेंड्स कि जो आपकी वाइन की क्वालिटी है वो कितनी मेंटेन्ड है, कितने साल पुरानी है. जितने साल आपकी वाइन पुरानी होगी उतनी जो क्वालिटी है उसकी ज़्यादा बेटर होती जाएगी और उतनी उसकी जो प्राइस है वो हाई होती जाएगी, उतनी वो कॉस्टली या कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी. Like it's mentioned here, like meant to be aged, so hard to tell if the wine will be good when it is on the market. अब बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वाइन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गुड होती है और वो मार्केट में आ जाती है. अब पहला फैक्टर ये आता है, कैसे वाइन की क्वालिटी को कैसे परखा जाता है, वाइन की क्वालिटी को कैसे जज किया जाता है, हाउ द वाइन क्वालिटी इज बीइंग पैरामीटराइज्ड. वाइन क्वालिटी के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके तहत इस वाइन क्वालिटी को परखा जाता है, जज किया जाता है. द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज, या तो हम एक्सपर्ट टेस्टर्स ले आते हैं जो वाइन के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वाइन के बारे में जानते हैं, जो सालों साल वाइन के अंदर काम करते हैं, वाइन शॉप्स में होते हैं. सम rich people who are good taste in wine, so हम या तो उनको हायर करते हैं to taste the quality of the wine and predict क्या ये वाइन कितने अरसे तक हमारे साथ चल सकती है. as well as the other condition is कि हम खुद से एनालिसिस लगाना शुरू कर दें कि वाइन की क्वालिटी क्या है. So by using the linear regression, we are going to use some features and going to predict using the linear regression कि जो quality of wine है वो क्या है, क्यों है, कब से है, and how long it will gonna remain the same. अब functional regression या linear regression की बात की जाए तो अगर हम predicting the quality of wine की बात करें तो wine की अपनी अपनी quality होती है. It means कि हमें function किसी ना किसी तरीके से apply करना in which we are going to find out the quality of a wine. So quality of a wine के लिए I'm going to use f of x. To find the quality of a wine, I'm going to use f of x for the quality, for the sake of the quality. Y of f of x.
अब पहला कंसर्न ये आता है why we are going to deal in f of x. So I'm going to share a little bit formula with you कि हम linear regression में f of x ही क्यों करते हैं, why we have the f of x, nothing else. तो अब पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास f of x है क्या. f of x की जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, it's going to be like this sabotage. Okay, so I guess resume share पे जाके I'm just going to share the same example. So I'm going to share. Okay, I'm going to add the things on this board. So why f of x? Why we are not going to use any other function? If I talk about the quality of a wine, it means के लोग वही वाइन को यूज करेंगे जो कि या तो उसके टेस्ट से मुतासर होते हैं, या क्वालिटी से मुतासर होते हैं, या लेबल से मुतासर होते हैं, या किसी भी ऐसी चीज से मुतासर होते हैं जो वाइन को अच्छा बनाती है. तो इट मीन्स के वाइन को जो भी चीज अच्छा बनाती है वो एफ ऑफ एक्स है. जिसने वाइन को अच्छा बनाना है या बनाएगी, उसके लिए बनाएगी का के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, दैट इज टाइम. फॉर द टाइम सेक दिस टी बिलोंग्स टू टाइम, nothing else. And this f of function, f of x, is the quality of a wine you are going to have, you are going to use. अब the quality of a wine, अब मेरे पास f of x है, the quality, मेरे पास टाइम t है कि कितने टाइम में उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करती है. And this epsilon is an error. This is an error function. If I'll get any kind of trouble, if I get any kind of error, so this will actually display in epsilon. Epsilon will show me the actual error ratio between the data stuff, the data. अब मेरे पास पहला पॉइंट क्या आता है regarding the data. I have quality of wine, random some quality or anything. So I have something in my hand that belongs to the quality of wine. अब या तो अब मैं अपना लीनियर रिग्रेशन का प्रॉपर मॉडल खुद से बनाऊंगा, लेकिन खुद से बनाने के लिए you need a proper programming expertise as well as you need to learn a lot of Python as well. So बजाय इसके कि you can develop your own functions or your own system, your own stuff, why don't we gonna use the pre-make libraries in Python? Python को use करने का यही तो फायदा that we have a pre-utilized library. So technically I'm going to make a thing, find the prediction of the quality of a wine, in which I'm going to find out using the linear regression कि जो quality of wine है वो कितनी important है, या वो किस तरह हम उसको find out कर सकते हैं. So by using the linear regression and the model of linear regression, I'm going to find out the quality of wine. क्योंकि wine, जैसे हमने last time अपना linear regression को use किया था, क्योंकि wine उतनी pure होती है with the passage of time. It shows here कि जितनी wine को age हो जाएगा, जितनी wine के उस पे time गुजर जाएगा, उतनी जो wine है वो उतनी expensive भी हो जाएगी, उतनी pure भी हो जाएगी, और उतनी रेयर भी हो जाती है. तो मार्केट के अंदर इसको ढूंढना मुश्किल ही हो जाता है. अब पहला फैक्टर हम लीनियर रिग्रेशन कैसे यूज करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है दैट बिलोंग्स टू द क्वालिटी ऑफ वाइन, द क्वालिटी ऑफ वाइन विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम. तो टाइम लगेगा उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में, एंड दिस इज अ चांस ऑफ एन एरर. अगर आपकी क्वालिटी आपके मतलब के मुताबिक नहीं आई तो इट मीन्स इट विल ऑकर एन एरर. हम उस एरर को यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं. अब कोडिंग में ये कैसे करते हैं, इतने से फंक्शन को पहले देखते हैं कि हाउ वी गोना ऐड अ कोड ऑफ दिस थिंग.
in or. अब मेरा पहला पॉइंट, so I'm going to go to the Google Colab. मैं Google Colab पे जाऊंगा and I'm going to make a new notebook. Google Colab को यूज करने का ये फायदा होता है instead of others कि you will have access of thousands of libraries without any restriction, without any headache actual में. So I'm going to make a new notebook which will show me a blank interface. अब blank interface के अंदर मैं पहले एक चीज़ ऐड करूँगा जो मुझे पहले रिक्वायर्ड होगी. So import pandas as pd, which I have. Now अब जाहिर सी बात है, I'm going to make a function f of x, which means I need something to add up इस function के लिए. So I'm going to add some weights. Regression के weights मुझे कुछ ऐड करने हैं. मतलब wine की quality चेक करने के लिए age ऐड करनी है. यहाँ पे age actually weight है, क्योंकि जितनी उसकी एज होगी वाइन की उतना उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा. सो एक्चुअली वेट इज एज इन दिस सिस्टम. सो आई एम गोइंग टू प्रिंट सी बॉन्ड एज SNS. अब मुझे ये सारी चीज़ें शो करवानी है इन फ्रंट ऑफ थिंग, यानी कि ग्राफिकल वे में मुझे ये चीज़ें शो करवानी है. सो आई एम गोइंग टू हैव import matplotlib dot pilot as plt. मुझे चीज़ें ग्राफिकली चीज़ें शो करवानी है. मतलब कहने का मुझे इस तरह का कोई ग्राफ शो करवाना है, तो आई नीड टू हैव अ वैल्यू इन ग्राफिकल ऑर्डर्स. सो मेरा जो अपना फंक्शन था जिसमें हमने एज फाइंड आउट करनी है कि इस वाइन की स्पेसिफिकली इस वाइन की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बुरी है या गंदी है, क्योंकि हमने इसको प्रेडिक्ट भी करना है. सो हम उसको यूज़ इसमें करेंगे या इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं. अब पॉइंट दूसरा कि हम इसके लर्निंग लेते हैं एसके लर्न, जो नॉर्मली सारे लोग यूज़ भी कर रहे होते हैं. डॉट LINEAR लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं. तो इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन LINEAR लीनियर REGRESSION. सो हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं. सो हम लीनियर रिग्रेशन का पूरा मॉडल ही पिक कर लेंगे. सो हम इसको रन करके देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं, क्योंकि फिर हमें फाइल्स को चेंज करना पड़ेगा इफ़ वी गेट एनी एरर, बिकॉज समटाइम्स ये लाइब्रेरीज जो हैं ये पिक नहीं होती. सो हमें लाइब्रेरीज जो हैं वो फिर चेंज करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंगली. एज इट इज़ टेकिंग टाइम, यस डेफिनेटली, एज आई सेड कि ये लाइब्रेरीज समटाइम्स हैं वो काम नहीं करती हैं. लीनियर रिग्रेशन की जैसे लाइब्रेरी जो है वो काम नहीं कर रही एक्चुअली. यहाँ पे LINEAR लीनियर रिग्रेशन. सो लेट्स सी. ओके, सो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो लाइब्रेरी जो है वो काम नहीं कर रही थी. सो यहाँ पे अब हम वैलिडेशन देंगे. वैलिडेशन मतलब कि इसका मॉडल वैलिडेट करता है या नहीं ऑन ट्रेनिंग. अब मैं ट्रेनिंग मॉडल लिखूंगा इसका. सो फ्रॉम sklearn डॉट क्रॉस अंडरस्कोर वैलिडेशन import train underscore test underscore split split. इसको रन करके देखते हैं. एंड इट शोज एन एरर बिकॉज sklearn के जो क्रॉस अंडरस्कोर वैलिडेशन है वो अब काम नहीं करती. दैट्स अ मेजर पार्ट.
सो हम क्रॉस वैलिडेशन को पिक करने के लिए हम यहाँ पे इसकी जगह कुछ और यूज़ करेंगे। जब भी आपके पास कोई फाइल प्रॉपरली काम ना कर रही हो, उसको जाके गूगल पे चेक कर लें, क्योंकि इसकी इंस्टेड एक फाइल जो है वो लिखी होती है, दैट इज़ इसके फीचर सिलेक्शन में ये पार्ट आ चुका हुआ है। तो कुछ लोग जो है वो मॉडल सिलेक्शन यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग फीचर सिलेक्शन यूज़ करते हैं। सो हम भी इनमें से कोई एक चीज़ को यूज़ करेंगे ताकि हमें जो ये एरर है वो आगे ना मिले। तो ये हमारा एक्चुअली यूज़ होगा मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन में। एज आई सेड कि मॉडल सिलेक्शन में कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग फीचर सिलेक्शंस में यूज़ करते हैं। सो इसको मॉडल सिलेक्शन में इसको यूटिलाइज करके देखते हैं। एंड यस, इट्स गुड टू गो विद द मॉडल सिलेक्शन पार्ट। हमें बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मॉडल सिलेक्शन इज़ अ गुड वे टू यूटिलाइज स्पेसिफिक लाइब्रेरी। अब हमें यहाँ से जो चीज़ चाहिए वो अब चाहिए डेटा सेट, कि हमें स्पेसिफिकली क्वालिटी ऑफ वाइन को प्रेडिक्ट करने का डेटा सेट कहाँ से मिलेगा जिस पे हम लीनियर रिग्रेशन जो है वो अप्लाई करवा सकें। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर डेटा सेट। सो हम जाएंगे कैगल पे .com, यहाँ से जाके हम डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। अब डेटा सेट कौन सा होगा? डेटा सेट होगा वाइन का, वाइन क्वालिटी का। सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वाइन, QUALITY, वाइन क्वालिटी। सो वाइन क्वालिटी के ऊपर मुझे, रेड वाइन क्वालिटी के ऊपर मुझे डेटा सेट मिल जाएगा, प्रेडिक्शन का भी है। सो मैं रेड वाइन क्वालिटी के ऊपर डेटा सेट पैक कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ से इस डेटा सेट को डाउनलोड भी कर लेता हूँ। सो मेरे पास ये रेड वाइन क्वालिटी का जो डेटा सेट है ये डाउनलोड हो चुका है। शो इन फोल्डर, मैं यहाँ पे आता हूँ। सो ये मुझे फोल्डर में यहाँ पे डेटा सेट जो है वो शो हो जाएगा। मैं इसको ओपन कर लूँगा और यहाँ पे बाद में मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है इन और सैम्पल डेटा सेट, क्योंकि मुझे यहीं से इसको पिक करना है। सो आई नीड अ डेटा सेट ओवर हियर। तो वाइन क्वालिटी रेड वाले का डेटा सेट जो है ये सैम्पल डेटा के अंदर आ जाएगा। सो ये सैम्पल डेटा में डेटा सेट मेरा आ चुका है। तो अब मुझे यहाँ से इस मॉडल को, जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है जिसमें हमने एक्चुअल में क्या करना होता है, हमने फंक्शनल फॉर्मूले के थ्रू हमने ये फाइंड आउट करना है विदाउट स्केयर एरर। अभी हम स्केयर एरर फाइंड आउट नहीं करेंगे, अभी हम लॉस फंक्शन अप्लाई करवाएंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग वाइन की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। सो मैं यहाँ पे डेटा सेट इम्पोर्ट करूँगा। सो मैं लिखूँगा वाइन डेटा which is equals to pd.read_csv। मुझे इसका पाथ कॉपी करना है। मैं इधर से राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पाथ किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और साथ ही मैंने इसके निकाल दिए कि इसमें कितना डेटा अवेलेबल है। सो वाइन डेटा डॉट हेड। सो दिस इज माई डेटा सेट राइट नाउ। ये मेरा डेटा सेट है जिसपे क्वालिटी जो है वो मेंशन की जा चुकी है। सो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास जो डेटा है ये है लेबल्ड डेटा, ये labeled data है। So right now we have a labeled data in which we are going to find out the quality of a wine as well as the quality of wine with respect to time। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम एक है वो ये है, मेरे पास क्वालिटी ऑफ अ वाइन तो आ गई, अब लेबल डेटा मेरे पास है। मैं अपने डेटा की डिस्क्रिप्शन निकाल लेता हूँ ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि मेरे पास वाइन डेटा की डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। सो दिस CRIPTION बल्कि डिस्क्राइब कर लेता हूँ अभी, डिस्क्रिप्शन की बजाय कि इसको डिस्क्राइब CRIB डिस्क्राइब कर लेते हैं डेटा को। हाउ मच वी हैव इन आवर डेटा। ओके, सो टोटल जो मेरे पास डेटा सेट है दैट इज 1599, ऑलमोस्ट 1600 का मेरे पास डेटा सेट जो है वो अवेलेबल है इस टाइम पे। मतलब कहने का ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग, अब हम सिर्फ ये निकालना चाह रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग
वाइन की क्वालिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, दैट इज आवर टुडेज डिस्कशन पार्ट, कि हमने क्वालिटी ऑफ वाइन को प्रिडिक्ट करना है। अब क्वालिटी ऑफ वाइन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे काम करता है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स बनता है, इफ आई एम गोइंग टू शो यू, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम एक्चुअली तीन से चार तरह के आउटपुट्स को पिक कर रहे होते हैं। एक आउटपुट होती है जिसको हम ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है आपकी इस क्वाड्रेंट में आउटपुट बिल्कुल ट्रू है। जैसे कि हमारे पास अभी लेबल डेटा है, तो इस लेबल डेटा के अकॉर्डिंग हमारी जो भी आउटपुट आएगी, दैट इज अकॉर्डिंगली एंड दैट इज ट्रू आल्सो। सो हर डेटा की जो आउटपुट होगी दैट इज टोटली ट्रू, तो हम उसको इसमें ऐड अप कर रहे होंगे। सो वी डोंट हैव to mention or measure the lot of things as well in confusion matrix. जब हम false positive की बात करते हैं तो it means कि at the same time your data is not good and at the same time your data is good। ये वो बात हो गई कि अगर आप किसी से कोई बात शेयर करते हो या कोई अपनी क्वालिटी ऑफ समथिंग शेयर करते हो, वो आपको ये कहता है कि दैट आपकी बात ठीक भी है और साथ ही वो आपको कह देता है कि आपकी बात ठीक नहीं भी है। तो दोनों सूरतों में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ठीक कैसे है और ठीक कैसे नहीं है। सो इन बोथ केसेस योर आंसर इज वैलिड। फिर आता है फॉल्स नेगेटिव। हम एक्चुअली पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम से भागती है, एफपी प्रॉब्लम। एफपी प्रॉब्लम इज नॉट इवन सॉल्वेबल। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास झगड़े के अलावा कुछ नहीं रहता। वाइल अगर आप किसी को कहते हो कि आपकी वाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो कहता है कि मेरी वाइन की क्वालिटी बेस्ट है, तो आपका एल्गोरिथम अगर आपको एफपी प्रॉब्लम निकाल के दे देता है तो दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल, यू आर इन बिग ट्रबल। बिकॉज एफपी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता इन एनी केस, इन एनी सिनेरियो। एफपी प्रॉब्लम इज द ओनली प्रॉब्लम विच कैन कम्युनिकेट विद द स्टफ। जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम कंडीशन ठीक भी है और जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम कंडीशन ठीक नहीं भी है, सो दोनों कंडीशंस में यू आर इन ट्रबल। फॉल्स नेगेटिव, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का तीसरा पार्ट फॉल्स नेगेटिव होता है। फॉल्स नेगेटिव के अंदर आपकी कंडीशन जैसे मर्जी हो, उसने दोनों तरफ रहना ही फॉल्स है, उसने अपने आप को फॉल्स ही डिक्लेयर करना है। चौथी कंडीशन ट्रू नेगेटिव। कंडीशन ट्रू है, आंसर आया आपका गलत। ये बात ऐसी है कि आपने एक ऑटोमेटिक या ऑटोनोमस व्हीकल बाय की है, अब वो ऑटोनोमस है भी और वो ऑटोनोमसली चलती भी नहीं है। मतलब कहने का है कि आपने गाड़ी बाय कर ली और उसका स्टीयरिंग है भी, लेकिन आपसे उसका स्टीयरिंग जो है मुड़ता नहीं है। सपोज करो कि आप लोगों ने मेहरान बाय कर लिया एंड यू हैव स्ट्रेंथ टू टर्न द कार, कि अगर आप किसी 7-8 साल के बच्चे को मेहरान चलाने के लिए दे दो तो वो बच्चा जो है वो मेहरान नहीं चला सकता। सो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रू नेगेटिव। मेहरान तो है लेकिन चलाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बच्चे ने चलानी है और उससे स्टीयरिंग वहाँ पे मूव नहीं करना या उसके पाँव नहीं पहुंचेगा। दूसरी और कंडीशन भी है, लाइक that you can sum up with this argument as well, but it's not with relate to anything else, कि अगर आप किसी विमेन को गाड़ी चलाने के लिए दे देते हो तो she don't even look कि गाड़ी कहाँ जा रही है और किधर जाएगी, किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी। so that may be possibly happen in true negative, that she has a car but she don't know how to drive a car. So that is the possible of the true negative condition. While in the false positive condition, that in both condition you are on the false side. Your wine is good, but your wine is not good. According to the bartender, the wine is very good, but according to your taste and your material and your stuff, the wine is not good. So technically, you are both on the same condition. While in true negative, you are in a big trouble actually. While you're having a car, but you can't drive the car. Why? Steering so hard, like your feet cannot reach to the paddles. So there are a lot of conditions validate in true negative as well.
So now we are going to make a confusion matrix so we can draw the scare error out of the things. Now we are going to make a confusion matrix of this formula, in which actually we are going to design how we gonna get the wine on the special quality. So I'm going to find out the correlation between the wine data dot CORR. So I'm going to make a function out of it. So this is my function actually. So this is my function for true negative. I'm going to make a function of the true negative. Why I'm not going for the FP problem? Because FP problem में अगर हम जाएंगे तो हम तो कभी predict नहीं कर सकते कि हमारी wine की quality क्या है. True negative में हम किसी हद तक predict तो कर सकते हैं ना. So इसका मैं जो graph है वो plot कर लेता हूँ. So I'm going to import matplotlib dot pay plot as plt. So मैंने इसका plot जो है वो draw कर लेना. अब plot कितने size का होना चाहिए? So I'm going to find the figure size, that is plt dot, उसके अंदर subplots हो और उसका figure size क्या होना चाहिए? So fig size which is equals to, मैं कह देता हूँ अभी मेरा जो figure size है वो 10 by 10 का हो. So that is कि इसकी 10 rows होंगी and 10 columns होंगे. So that is more up to like confusion matrix. अब पॉइंट क्या आता है confusion matrix, या इसको एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं कहते, मैट्रिक्स कहते हैं. The matrix word came from the movie and that doesn't matter in our thing. Confusion matrix या matrices. अब मुझे अपना पहला confusion matrix draw करना है. So I'm going to have an SNS library, heat map, and from which I'm going to make a correlation. So correlation. So I'm going to make a confusion matrix between correlation. I'm going to find out the maximum value, which is equals to 1. So my graphical maximum value is equals to 1. Now, the scare is equals to true. Scare बनेगा, ठीक है, scare में आ जाते हैं क्योंकि scare के अलावा इसके पास और कोई चांस नहीं होता. Anot. Anot का मतलब ये होता है कि वो anot कि उसकी डायरेक्शन मतलब वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट या कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, दैट इज अ नॉट. यस, कनेक्टेड होंगे, सो दैट इज ट्रू. कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए इसका हीट मैप का? सी मैप का मैं इज इक्वल्स टू देने लगा हूँ ब्लू कलर, BLUE ब्लू. आप इसको वैसे रेड में भी दे सकते हैं, सो इट्स अप टू यू. BLUES ब्लूज. तो ब्लूज के सारे कॉम्बिनेशन इसमें ड्रॉ हो जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू run the program by pressing shift and enter together. So this is my confusion matrix जिसके अंदर मुझे ये चीज शो हो रही है कि fixed acidity किसमें है. So this is the quality of a wine in the confusion matrix. So this is the parallel combination of ones. This is what we are going to deal in. 67, 0.67, 0.67 and 1 and 1. So this is where we are going to have our thing in the confusion matrix as well. Now, अब मैं इस y-axis पे जो data है, ये वाला fixed acidity, violet acidity, citric acid, इसमें sugar है या नहीं है. So I'm going to put my analysis on this table. Why? अब किसी भी वाइन की क्वालिटी को या किसी भी चीज को यूज या चेक करना हो, so we are going to have the things कि हम उसमें क्या चीज उसको फाइंड आउट करें कि उसमें से उसकी जो क्वालिटी है वो फाइंड आउट हो जाए. इट मींस कि वी आर गोइंग टू डिप्लॉय नाउ दिस फंक्शन. हमने ये वाला कर लिया.
हमने टाइम के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस निकाल लिया, टाइम के अकॉर्डिंग हमने एक फीचर निकाल लिए कि इसकी टाइम के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। सो जो टाइम से इसकी चीज़ें चेंज होती हैं, टाइम के साथ साथ जो इसकी चीज़ें चेंज होती हैं वो क्या है, वो फिक्स्ड एसिडिटी है, वॉयलेट एसिडिटी है, सिट्रिक एसिड है, रेसिडुअल शुगर और बाकी सारी चीज़ें हैं। जो आप पीएच स्केल है, पीएच स्केल यूज़ होता है, अल्कोहल है या नहीं, अल्कोहलिक है या नहीं है, एंड क्वालिटी। सो ये टाइम के साथ साथ इसकी ये चीज़ें चेंज होती हैं। सो वी आर गोइंग टू मेक एनालिसिस ऑन दिस पार्ट, क्योंकि वी हैव द थिंग्स we have the things to figure it out कि हम इनको कैसे किस तरह इसको find out करेंगे. So I'm going to put all these into my feature list. अब feature list के अंदर इसको ऐड करने के लिए मैं सिर्फ एक टैग लाइन लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास अब फीचर्स आएंगे तो ही मैं इनको डील कर सकता हूँ, क्योंकि without features, without anything else, I'm not even able to deal with all these stuff. Yeah, I'm not even able to deal in all these communications. So मुझे अब सारी अपनी चाहिए फीचर लिस्ट. अब सारी फीचर लिस्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैं अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से डील करूंगा. सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से जो मैं चीज़ अब डील करूंगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माय एडिशनल फीचर्स. एडिशनल फीचर्स नहीं कह सकते, वैसे तो वेट्स कह सकते हैं. जो हम अब इसमें से इसके साथ डील करने जा रहे हैं, दैट इज़ और वेट्स. इन वेट्स की बिना पे we are going to have our data and communicate with it. अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा बनाने लगे, फीचर्स सेलेक्ट करने लगे. सो हियर वी गो, वी आर गोइंग टू हैव द फीचर्स अकॉर्डिंगली. सो लेट्स ऐड द फीचर्स. So here I'm going to have features is equals to, I'm going to have all of that features. So in which I'm going to add पहला ऊपर था fixed acidity, acidity, fixed acidity. ये मेरा पहला फीचर था यहाँ का. सेकेंड वन, violet acidity. So I'm going to add the second one. हम कुछ भी ले सकते हैं, हम सारे भी ले सकते हैं. So it's up to us कि आपने कौन कौन से फीचर्स इसमें से पिक करने हैं. violet acidity, violet acidity. फिर आपके पास आ गया इसमें citric acid. citric acid ही था ना, citric acid है, फिर रेसिडुअल शुगर है. ओके, सो दूसरा हमारे पास आ जाएगा CITRIC, सिट्रिक एसिड. हमारे पास ये आ गया. एंड सेकंड हमारे पास फिर आ जाएगी रेसिडुअल शुगर, रेसिडुअल शुगर एंड मैनी मोर. एंड पे हमारे पास क्वालिटी है, अल्कोहल है. क्योंकि क्वालिटी तो हमने प्रिडिक्ट करनी है, तो इसमें से अब कुछ और चीज़ ले लेते हैं. मैं इसमें से अब एक चीज़ ले लेता हूँ, दैट इज़ पीएच. पीएच इज़ अ गुड वन, क्योंकि मैं अब सारे फीचर्स के ऊपर से पिक नहीं करेंगे. हम अल्कोहल लिख ले लेते हैं कि आपकी वाइन अल्कोहलिक कितनी है. सो मैंने कुछ फीचर्स यहाँ से पिक कर लिए, अल्कोहल कुछ फीचर्स पिक कर लिए, कुछ रहने दिए. सो आई एम गोइंग टू ऐड these features in my x-axis. So x is equals to wine data, features. So y में मैं अब दे दूंगा इसको wine data. इन सारे फीचर्स पे जो चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज QUALITY, क्वालिटी. इन फीचर्स के ऊपर हमने क्वालिटी अब फाइंड आउट करनी है. मैं और कोई फीचर्स नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इन फीचर्स के ऊपर अपनी क्वालिटी
डिफाइन करूंगा और फाइंड आउट करूंगा कि हाउ मच क्वालिटी डू आई हैव in a good way, how much quality do I have in a bad way, or something like it. Now I'm going to plot a graph according to these functions with respect to the quality. So SNS dot pair plot, pair plot. Now I'm going to find out wine data, इस data में से जो कि x underscore variables के पास है, और वो क्या है, फीचर्स. मेरे पास यहाँ पे फीचर्स हैं, सेम ऐसे ही फीचर्स मेरे पास y अंडरस्कोर वेरिएबल के पास भी है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास y पे क्या QALITY क्वालिटी आएगी. मतलब कहने का ये फीचर्स मेरे सारे x एक्सेस पे चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अब ये फीचर्स शो हो रहे होंगे और यहाँ पे मेरे पास क्वालिटी शो हो रही होगी कि इनकी बेसिस पे मेरी जो क्वालिटी है वो कैसी है. मैं यहाँ पे इसकी कैटेगरी डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज काइंड which is equals to regression है, मैं regression model यूज कर रहा हूँ REG, and now I'm going to have a size of my figure. So size is equals to, मैंने 7 दे दिया, और इसकी एस्पेक्ट रेशियो की कॉलम के दरमियान का डिफरेंस कितना होना चाहिए, कॉलम के दरमियान का डिफरेंस जो होगा, सो एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल्स टू 0.5. मैं इसको रन कर दूंगा. So this is, it will show me the difference of the wine fixed acidity, and this is my quality on this part. So this is my fixed linear regression model, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली हमें डिफाइन करिए कि हमारे मॉडल कितने एक्यूरेटली बना है, या इसमें हमें क्या चीज़ एक्यूरेटली मिल रही है. जो इसमें लाइट ब्लू लाइन है ये शो करती है कि जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में जो 0.2 के करीब करीब जो वैल्यूज हैं ये भी वैलिडेट करती हैं आपके ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन में, ये भी वैलिडेट करेगी, विच मीन्स अब हमें इन दोनों को आपस में माइनस करने की ज़रूरत नहीं बची. इसकी रीज़न कि जब ये पॉइंट्स वैलिडेट कर गए, जो हमें ऊपर ऊपर ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही है वो एक्चुअली ये वाली लाइंस है, ये वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारी लाइन जो है वो ये गुजर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो ये आसपास के जो पॉइंट्स हैं या कितने ऊपर तक ये पॉइंट्स आ सकते हैं या हैं, कितने ऊपर पॉइंट्स हैं कितने ऊपर पॉइंट्स नहीं है. सो ये लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली अभी हमें ये शो कर रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव द क्वालिटी ऑफ वाइन विद रिस्पेक्ट टू एज. अब पहली प्रॉब्लम ये आती है कि एज के साथ साथ क्वालिटी तो पता लग जाएगी, लेकिन क्या हमारी वाइन की क्वालिटी एज के साथ साथ कितने परसेंट इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट. जो अभी हमारे पास डेटा सेट है इसके अकॉर्डिंग अगर हम एज के ऊपर अपनी टाइम क्वालिटी ले रहे हैं कि हमारी क्वालिटी जो फाइन है वो एज के साथ साथ इंक्रीज करती है, तो कितनी इंक्रीज करेगी. मतलब अब हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, अब हम ये फाइंड आउट करने लगे फाइंड डब्ल्यू कि कितना लॉस हो सकता है अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, विच मीन्स कि अगर हम टाइम पे जाएंगे, अगर हम टाइम पे किसी चीज को फाइंड आउट करने जाएंगे टाइम पे, सो गोइंग टू राइट अ टाइम फार्मूला एज वेल. टाइम का एक्चुअली ट्रेन टेस्ट ही लिखने जा रहा हूँ, लेकिन वो हमें ये बताएगा कि अगर हम किसी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग इसको ट्रेन करते हैं या इसको लर्निंग करवाएंगे, तो टाइम के साथ साथ जो हमारी वाइन के ऊपर जो एक्यूरेसी है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगी. जो हमारी वाइन है वो टाइम के साथ अपने आप को कितने परसेंट इंक्रीज करेगी या कर सकती है. सो नाउ मैं x अंडरस्कोर ट्रेन वेरिएबल बनाता हूँ, x अंडरस्कोर टेस्ट, y अंडरस्कोर ट्रेन, ये दोनों एक्सिस पे ट्रेन हो रहा है. मैंने इसको x एक्सिस पे भी ट्रेन करना है, y एक्सिस पे भी ट्रेन करना है, x एक्सिस पे भी टेस्ट करना है, y एक्सिस पे भी टेस्ट करना है, इज इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट. किस किस पे स्प्लिट करना है, दैट इज आवर पार्ट.
So I'm going to split as x comma y comma, मैं यहाँ पे इसको random random state दे दूंगा. Random state है actually the value कि ये अपने पास कितनी states का difference रख सकता है, क्योंकि आगे जाके हमने एक टॉपिक पढ़ना है that is on state space, how much state space do we have. So मैं इसको read करवाऊंगा. Okay, अब रीड करवाने के बाद मैं अब इस पे रिग्रेसर का कॉल करूंगा फंक्शन दैट इज लीनियर रिग्रेशन. रिग्रेशन regressor regressor is equals to linear regression. मैंने इसका फंक्शन कॉल किया लीनियर रिग्रेशन का, और साथ ही साथ मैंने रिग्रेसर का फिटनेस भी निकाल ली, फिट फंक्शन भी निकाल लिया. किसके ऊपर? जो मैंने डेटा ट्रेन करवाया, x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन. इसके अकॉर्डिंग मैंने इसके फिटनेस फंक्शन भी निकाल लिए कि मुझे ये आंसर क्या देता है. सो मेरे फिटनेस फंक्शन ने अपनी कोई वैल्यू जो है वो स्टोर कर ली है. अब वो वैल्यू स्टोर करने के बाद आई नीड कि मेरे वाइन की कितने परसेंट एक्यूरेसी है अकॉर्डिंग टू माय डेटा सेट. अभी लर्निंग रेट हमने इसके साथ ऐड नहीं करवाया, अभी हम यहाँ पे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि मैंने जो वेट लिखे थे उसके अकॉर्डिंग मेरी वाइन की एक्यूरेसी क्या आई थी. वेट इनपुट, मैंने यहाँ पे जो इनपुट वेरिएबल्स दिए थे फीचर को, इसके अकॉर्डिंग हाउ मच एक्यूरेसी डू आई हैव इन माय एल्गोरिथम सिस्टम. सो मैं यहाँ पे दूंगा ACCURACY एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू रिग्रेसर. रिग्रेसर जो अभी हमने लिखा है, रिग्रेसर डॉट, इसका मुझे स्कोर चाहिए, SC स्कोर. मुझे इसका स्कोर चाहिए, कहाँ पे चाहिए? मैं अब टेस्ट वेरिएबल पे इसके स्कोर लूंगा, x टेस्ट y अंडरस्कोर टेस्ट. मुझे दो जगह पे इसके स्कोर चाहिए. एक सेकेंड, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द स्टेटमेंट कि मेरी एक्यूरेसी जो है वो कितनी आई है और कितनी नहीं आई. सो आई एम गोइंग टू ऐड प्रिंट ACCURACY एक्यूरेसी. ये मेरी एक्यूरेसी कितनी आएगी मुझे ये शो कर दो, कितने परसेंट आएगी वो शो हो जाएगी. डॉट, मैंने फॉर्मेट बता दिया कि मुझे इसमें शो क्या करवाना है, कि ये इंटीजर वेरिएबल में होगा, राउंड ऑफ होगा, मतलब मुझे राउंड वैल्यू मिलनी चाहिए, और राउंड के अंदर मुझे एक्यूरेसी मिलनी चाहिए. ACCURACY एक्यूरेसी इनटू 100, कि वो मल्टीप्लाई होके 100 में मुझे कन्वर्ट करके दे देगी. सो मेरी जो टोटल एक्यूरेसी है अकॉर्डिंग टू माय गिवन पैरामीटर्स, मेरी टोटल एक्यूरेसी जो है वो 34% आएगी, विच मीन्स कि मेरा बाकी जो सारा फंक्शन है वो लॉस में जाएगा, विच मीन्स I have a loss of 66% of good, 66% of wine quality. 66% ऐसा चांस है कि मैं अपनी वाइन की जो क्वालिटी है वो लूज कर जाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन 34% चांस ऐसा है कि मेरे वाइन की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज करेगी, विच मीन्स कि कुछ कंपनीज पे फिर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे. हमारी जो वैल्यू है वो किस कंपनीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे हम लोग, कि अगर फलां कंपनी की वाइन है तो वो ही सिर्फ ज़्यादा परफेक्टली होगी, अगर किसी और कंपनी की वाइन है वो हम उस पर उसका काम नहीं चला सकते. अब पहला फैक्टर तो यह है कि हमने वाइन क्वालिटी को फाइंड आउट कर लिया कि वाइन की क्वालिटी क्या है, क्यों है और कैसे है. अब वाइन क्वालिटी हमने फाइंड आउट कर ली यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन, और हमने सारा इसका पोर्शन भी बता दिया. अब ग्रेडियंट डिसेंट
इसमें कैसे हेल्प करेगा? How gradient descent will help us to find the good quality of a wine? क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन लीनियर रिग्रेशन होता है वो इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें या इस तरह की किसी भी चीज़ की बात करें तो ग्रेडियंट डिसेंट भी समटाइम्स हमें हेल्प ये करता है टू फाइंड आउट कि हम एक्चुअल में क्या चीज़ इस पे लगा रहे हैं, क्या चीज़ इस पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन लिखता हूँ या ग्रेडियंट डिसेंट को इस पे अप्लाई करता हूँ तो ग्रेडियंट डिसेंट में मुझे क्या चीज़ चाहिए? मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग रेट। इसी के अंदर हम ग्रेडियंट डिसेंट को ऐड करते हैं। Gradient descent, how are we gonna add the gradient descent? So this is एक्चुअल में ये मैनिपुलेशन भी हो जाएगी कि हम gradient descent को इसमें ऐड कैसे करते हैं या कैसे करेंगे. So that's our the path and the part of the algorithms as well.